आप लेजिस्लेटिव पावर पर बोलिए ना सर, मैं आपको इजाजत दूंगा सर आप अगर कानून की बात करो तो कानून की बात। सर हम ये बिल सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है। सीबीआई इज बीइंग यूज्ड टू हैरेस ऑपोजिशन पीपल। सीबीआई श्री अधीर रंजन चौधरी जी, सर इट विल सर्कमवेंट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। गाइड कर रहे हैं क्या आपको? पिनाकी मिश्रा जी, he would be able to explain. He is a top lawyer. I am not a lawyer, but I find that the Supreme Court, which called the CBI a cage parrot, is being bypassed, and a particular person is being favored. Okay, Adhi Ranjan Chaudhary, sir. Sir, with नए तथ्य हो तो बोलो, पुराने तथ्यों को मत बोलो। With all humility is at my command, I am strongly opposing the introduction of this bill. The reasons. The reasons, sir. Ek minute. Sir, the government by bringing this bill has accepted that the whole Indian police service has become useless. They are accepting that there are no officers in the present system who can take over the post of director. If the logic of the government has to be accepted, then that means the post of director should be made a lifetime post. Sir, बात यह है कि सर ये भी एक मेलाफाइड एक लेजिस्लेशन लाने का कोशिश किया जा रहा है। सर ये सरकार ये ऑर्डिनेंस राज चाहते हैं, ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी चाहते हैं, इसलिए अपने मर्जी माफिक जिसको पसंद करते हैं इसको कहते हैं कि पिक एंड चूज पॉलिसी। ये पिक एंड चूज पॉलिसी के दौरान ये रखना चाहते हैं जो ऑफिसरों ने इनकी बात सुनकर ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करेगी, यही इनका मंशा है। सर लीगल, एकदम लीगल पॉइंट सर, बिल्कुल लीगल पॉइंट सर। इन द केस ऑफ विनीत नारायण एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सर एकदम लीगल पॉइंट पे। इन द केस ऑफ विनीत नारायण एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन 1998 that the CBI director shall serve for a minimum 2 years, and sir, ekdam last mein, regardless of the date of his superannuation, this should ensure that an officer who is qualified in every way is not overlooked simply because he has fewer than 2 years till he retires from his position. तो ये क्या माने रखता है? So, sir, सिर्फ चापलूसी क्राइटेरिया नहीं हो सकता। Government should not follow the criteria of obsequiousness and obedience. Rather, government to follow the concept of efficiency and competency, which has been compromised by this kind of legislatively malified, democratically autocratic legislation. My objections to this bill is similar to that of the former bill, but additional one sentence I would like to make. In the former bill, it is FAT, a Financial Action Task Force, came into the picture. But here, United Nations Convention Against Corruption in May 2011 took place, or it has found out place in this statement of objection reason. I would like to ask a specific question to the Honorable Minister, whether the United Nations, whether the Convention, or the intergovernmental organization under the United Nations has anything spoke about the extending the tenure of a particular officer. Nothing to do with the statement of aims and objections. Once again, I would like to repeat, the statement of aims and objections is contradicting the provisions of the bill, and it is lacking bona fide. Hence, I strongly oppose the introduction of this bill also. And I would like to have an answer from the Honorable Minister also. Okay, thank you. माननीय मंत्री जी कुछ देना चाहते हैं पास? केवल इतना कहना है अध्यक्ष महोदय कि बार बार वो पैरेट इन केज की बात आ रही है, शायद ये भूल गए कि वो यूपीए सरकार को लेकर के कहा गया था। अब वो तोता आजाद हो गया था, 2014 से वो तोता आजाद कर दिया गया। और दूसरी बात ये कि जैसे प्रेमचंद्रन जी ने अभी ये कहा कि क्या इस तरह से यूएनओ में है, उसकी विस्तार में मैं चर्चा में बात करूंगा, बट द FATF 8 clause says the law enforcement authorities and prosecutorial authorities should have adequate financial, human and technical resources. Countries should have in place processes to ensure that the staff of these authorities maintain high professional standards, including standards concerning confidentiality. And what is that? We'll talk in detail because I don't want to now delay the introduction. But in the interest of maintaining confidentiality, also keeping in mind the international ramifications, this is being done.
In fact, again and again it is being said that there is a leverage to give an extension which is unlimited. It's not so. The amendment brings in that it's going to be limited to 5 years, which was not earlier. And the existing clause says that the minimum is 2 years. So we have actually streamlined it. We'll go in detail after when we go for the consideration of the bill. Thank you. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Honorable Speaker, I introduce the bill. आइटम नंबर 17 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आइटम नंबर 7 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। I lay on the table an explanatory statement showing reasons for immediate legislation by promulgation of the DSPE Ordinance 2021. And I move the bill. थैंक यू। शून्यकाल। शून्यकाल आपको भी मौका देंगे, सबको मौका देंगे। कल भी मौका दिया था, आज मौका देंगे आपको। बैठ जाओ, बीच में उठोगे तो मौका नहीं दूंगा, और नहीं उठोगे तो सबको मौका दिया जाएगा। श्री सीपी जोशी जी पहले लिस्ट। श्री सीपी जोशी जी, इनको जाना इसलिए प्रश्न ले लिया इनको, बाकी सबको धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं कि चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र और पूरे मेवाड़ के किसानों की बात को उठाने का आपने अवसर दिया। खरीफ के फसल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बेमौसम बारिश से किसान के खेतों में पकी पकाई फसल पड़ी रह गई। कई मंडियों में फसल खराब हो गई, चाहे मक्का हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, वो फसलें बर्बाद हो गई। इसी सदन में कई वर्षों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने फसल खराबे का कानून जो 50% था उसको 33% कराने का काम किया। लेकिन राजस्थान की सरकार ने गिरदावरी में स्पष्ट निर्देश दिए कि 33% से ऊपर खराबा उसमें आंकना नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है, खरीफ की फसल तो खराब हुई, लेकिन उसके साथ साथ रबी की फसल भी, अभी पानी भर जाने कई जगह तो अमृत का काम किया, लेकिन कई जगह फसलें बर्बाद हो गई। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उचित गिरदावरी हो और किसान को उसकी फसल का उचित खराबा मिले, ताकि इस संकट के समय जहां राजस्थान की सरकार न तो कर्जा माफी कर रही है, न बिजली के बिलों को माफ कर रही है, ऐसे समय उचित गिरदावरी होगी तो निश्चित रूप से किसान को फायदा मिलेगा। साथ ही मेरे क्षेत्र में अफीम की खेती भी होती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि वहां 2014 से लेकर अभी तक 18,000 से लगभग 75,000 तक लाइसेंस बढ़ाने का काम किया, लेकिन और भी ऐसे कई लोग हैं जो इस बड़ी संख्या में जो अफीम के लाइसेंस की कतार में हैं। सरकार से मांगे कि उन लोगों को एक रिलैक्सेशन देते हुए उसमें सहानुभूतिपूर्वक उन सभी लोगों को लाइसेंस देने का काम करें। और पॉपी हर्स जो डोडा चूरा होता है, जिसमें बहुत हल्के उसका नशा होता है, कई बार राजस्थान की पुलिस उनको बेवजह परेशान करने का काम करती है। मेरी सरकार से मांग है कि उनको ऐसे 8/29 की धारा से उसको निकाला जाए, तो आम किसान जो इसके पुलिस की मार से मरता है उसको इससे राहत मिल सकेगी। मेरा आपके माध्यम से यही सरकार से मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राहुल कसवा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पॉन्जी स्कीमें लेकर कई कंपनियां इस देश में हमेशा आई हैं और भोले भाले निवेशकों का पैसा लूट के ले जाने का बहुत सा हमेशा हमने अखबारों में बात सुनी भी है। ऐसे ही सर, एक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसे राजस्थान के करीब 20 लाख निवेशकों का पैसा ज्यादा ब्याज दर देने की अनेकों स्कीमें बता के लूटने का काम किया। ये वो निवेशक हैं जो सर जिनका बहुत छोटी पूंजी होती है और अपनी पूंजी लगा के वो उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छा पैसा मिल जाएगा तो उनका घर के अंदर उनके और भी काम बनेगी बात। पर ऐसे कंपनियां जो आती हैं और ऐसे हजारों करोड़ रुपए का घपला राजस्थान के अंदर इस सोसाइटी के मार्फत इन 20 लाख लोगों का हुआ है। इन स्कीमों के मार्फत लोग कोर्टों में भी गए इनसे परेशान होकर, कोर्ट के मार्फत जाने के बावजूद भी आज तक इनको कोई भी राहत नहीं मिल पाई है। सर, उस निवेशक को अपना पैसा चाहिए। मेरा आपके मार्फत सरकार से भी निवेदन है कि सरकार इन कंपनियों को पाबंद करके इनके जो अभी जो लिक्विडेटर भी अपॉइंट किया गया है उसको इनकी जो प्रॉपर्टीज को जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने सीज कर रखी हैं इनको हैंडओवर कर दी जाए, ताकि इनको नीलाम बेचकर जो भी व्यवस्था कर इन निवेशकों का पैसा दिया जाए। सर, मेरी लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर चाहे पाली हो, सिरोही हो, झुंझुनू हो,
काफी हजारों की मात्रा में ऐसे हमारे किसान भाई हैं, आम व्यक्ति है जो छोटी छोटी पूंजी लगाकर इसमें पैसा लगा रखा है। इनका पैसा दिलाने का काम सरकार करे, मेरा आपसे यह अनुरोध है। श्री एस वेंकटेशन, स्लिप भेज दीजिएगा, स्लिप भेज दीजिएगा, बंद कर देंगे जी। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் தொடர்ந்து தாக்கப்பட்டு வருவதை இந்த அவையினுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன். இது சார்ந்து ஒன்றிய அரசு எந்தவித தலையீடும் இல்லாமல் இருக்கிறது. குறிப்பாக கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு குஜராத் மாநிலத்தில் துவாரகா மாவட்டத்தில் ஓகா என்ற இடத்திலே குஜராத் மீனவர்கள் பாகிஸ்தான் கடற்படையினரால் தாக்கப்பட்ட நிகழ்வை ஒட்டி உடனடியாக ஒன்றிய அரசு தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்தது. அது மட்டுமல்ல, பாகிஸ்தானுடைய தூதரக உயர் அதிகாரிகளை அழைத்து தனது கண்டனத்தை நேரடியாகவும் பதிவு செய்தது என்பதை கவனப்படுத்த விரும்புகிறேன். ஆனால் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தமிழக மீனவர்கள் 12 பேர் இலங்கை கடற்படையினரால் தாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். பலர் சிறையிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இது சம்பந்தமாக கடந்த அக்டோபர் மாதம் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஒன்றிய அரசினுடைய தலையீட்டை கோரி கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். ஆனால் ஒன்றிய அரசு இதுவரை எந்த தலையீடும் செய்யவில்லை, எந்த எஃப்ஐஆரும் பதிவு செய்யப்படவில்லை. இலங்கை தூதரகத்தினுடைய உயர் அதிகாரிகளை அழைத்து எந்த விதமான கண்டனமும் பதிவு செய்யவில்லை. குஜராத் மீனவர்களுக்கு ஒரு நியாயம், தமிழக மீனவர்களுக்கு வேறொரு நியாயமா? பாகிஸ்தான் அரசினுடைய அணுகுமுறை என்றால் ஒன்று, இலங்கை அரசினுடைய அணுகுமுறை என்றால் வேறொன்றா? இது வலிமையாக கண்டனத்துக்குரியது. தமிழக மீனவர்களுடைய மீன்பிடி உரிமையை முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும், உறுதிப்படுத்த வேண்டும். இலங்கை அரசு, இலங்கை கடற்படையினுடைய தாக்குதலுக்கு இந்த அரசு உடனடியாக முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதை இந்த அவையிலே ஆணித்தரமாக வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். श्री अनिल फिरोजिया जी, श्री अनिल फिरोजिया नहीं है क्या? श्री नारायण भाई कछड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली जिले गुजरात में बीएसएनएल कंपनी का टावर एवं कवरेज की हालत अति आधुनिक दयनीय है। अमरेली जिले में कुल 619 गांव और 9 शहर है। इसके बावजूद यहाँ बीएसएनएल कंपनी के सिर्फ 289 टावर का एक्टिव है। सभापति महोदय, मैं अमरेली जिले में 2G के 157, 3G के 63 और 4G के 69 कुल मिलाकर 295 टावर है, जिनमें से अभी 289 टावर की एक्टिव है और 6 टावर काफी दिनों से बंद है। मेरे क्षेत्र में तोक़े तूफान के बाद इन 289 टावर में से ज्यादातर टावर बैटरी और मशीनरी की तकनीकी खराबी से कारण अभी बंद रहते हैं। तो वर्तमान में करीबन 10 टावर आज भी मशीनरी एवं तकनीकी कमी से चलते हुए बंद है। अमरेली जिले में लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड के रिपेयरिंग कार्य के लिए प्रति मास 1 किलोमीटर ओएफसी केबल और 40 नोट्स जॉइंट की आवश्यकता रहती है, लेकिन बीएसएनएल की क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से उपयुक्त सामान और मशीनरी और केबल 3-3 महीने के बाद भी नहीं मिलते, जिसके चलते अमरेली की समस्या के निवारण करने काफी देरी होती है। साथ ही अमरेली जिले में प्राइवेट, सरकारी और अर्ध सरकारी जमीन पर खड़े टावर का किराया करीबन 31 लाख से ज्यादा है, पिछले 11 महीनों से बाकी है, जिनमें चलते प्राइवेट जमीन धारक त्वरित पेमेंट करने की बात करते और बीएसएनएल टावर हटाने की मांग करते, परंतु उनका भुगतान नहीं हो पा रहा। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे जिले में बसे पिछड़ा हुआ है। जिला में बीएसएनएल हेड ऑफिस है। मेरे जिले की आवश्यकता है कि काफी कम और काफी विलंब के मशीनरी एवं केबल के दिए जा रहे हैं, जिसके चलते मेरे क्षेत्र लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी अमरेली बीएसएनएल की आर्थिक तंगी और मशीनरी की कमी के कारण नए लैंडलाइन कनेक्शन देना ही बंद कर दिया। अंत में मेरे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सभी तकनीकों को ध्यान से रखते हुए अमरेली जिले को बीएसएनएल के संबंधित काफी कमियां का दूर करे। धन्यवाद। श्री गजानन कीर्तिकर, श्री गजानन कीर्तिकर जी नहीं। डॉक्टर मनोज राजौरिया। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उन देश के लाखों नौजवानों की ओर दिलाना चाहता हूं जो
राष्ट्र की सेवा के लिए, देश के गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हुए भी इस देश की सेवा में, सेना में जाने की इच्छा रखते हैं। दुर्भाग्य से कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण पिछले 2 वर्ष ऐसे रहे कि नियमित रूप से जो सेना की भर्तियां होनी थी बहुत सारी जगह नहीं हो पाई। मैं राजस्थान क्षेत्र से आता हूं, राजस्थान के करौली धौलपुर से। मेरे राजस्थान और करौली धौलपुर के अंदर भी लाखों युवा ऐसे हैं जो सेना में भर्ती होने की कामना करते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों के दौरान उनकी अधिकतम आयु जो थी वो निकल चुकी है और ये 2 वर्ष में वो भर्ती में शामिल नहीं हो पाए। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र आग्रह है कि ऐसे युवा जिनकी इस कोविड काल के अंदर जो आयु सीमा को पार कर चुके हैं, कृपया उनको कम से कम 2 वर्ष का अधिक आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाए ताकि राष्ट्र सेवा में पुनः वो सेना में भर्ती होकर अपनी सेवा कर सके। धन्यवाद। जैसे बीरभूम के लोकल ट्रेन नहीं चल रही, इसके बारे में मैं रेलवे मिनिस्टर को बताना चाहती हूँ। जैसे अभी स्कूल खुल गए, ऑफिस खुल गए, स्कूल के बच्चे और टीचर सब जा नहीं पा रहे, और फिर वो सबसे बड़ी बात है हॉकर्स जो जिंदगी बिताते हैं इसके लिए, और 2 साल से उसका इनकम जिस लेवल पे चले गए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल ट्रेन। और लोकल ट्रेन अभी दिन में एक ही चल रही है, जैसे बीरभूम से मालदा जाने का टाइम और उससे साहेबगंज से आजिमगंज, और मेरे बीरभूम कॉन्स्टिट्यूंसी में मुरारोई, नौलहाटी, राजग्राम, चातरा, सादीनपुर, यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। जो चल रही है उसमें जाने वाले है ही नहीं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी जो नॉर्मल से जिंदगी आने लगे है, जो नॉर्मल से जिंदगी के लिए सब तरस रहे हैं, उसके लिए लोकल ट्रेन चलाना बहुत जरूरी है, जो पब्लिक को हैरेसमेंट से बचाए। ये रिक्वेस्ट मेरे से है। श्री सत्यदेव पचौरी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कानपुर से अनवरगंज मंदना रेल लाइन को हटाकर मंदना से पनकी को जोड़ने की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस रेल लाइन को हटाने जाने की आवश्यकता व गंभीरता को दर्शाते हुए मैंने कई बार माननीय मंत्री जी से और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से आग्रह भी किया। माननीय सभापति महोदय, अनवरगंज से मंदना तक का रेलवे लाइन 16 किलोमीटर लंबी है और ये 16 किलोमीटर में 18 क्रॉसिंग है और इसमें 50 जोड़ी ट्रेनें दिन में चलती हैं। हर 10 मिनट पे फाटक बंद होता है और कानपुर 2 भागों में इस रेलवे लाइन के कारण बट गया है, क्योंकि पैरेलल जीटी रोड है। तो जीटी रोड के कारण फ्लाईओवर नहीं बन सकते, और जब फ्लाईओवर नहीं बन सकते तो दक्षिण का मरीज अगर उत्तर के अस्पताल में आना चाहता है, मेडिकल आना चाहता है, कचहरी जाना चाहता है, तो फाटक बंद, और फाटक बंद तो दुर्घटना हुई। और दुर्घटना में अभी महामहिम राष्ट्रपति जी पिछली दफे जब कानपुर गए थे तो एक महिला की मृत्यु हो गई थी। स्वयं राष्ट्रपति जी ने उस पर खेद भी व्यक्त किया था। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर से माननीय रेल मंत्री जी से और रेलवे बोर्ड से और निवेदन करना चाहता हूं कि यह रेलवे लाइन कानपुर के विकास में बाधक है। कानपुर का औद्योगिक स्वरूप विकसित नहीं हो पा रहा, कानपुर के लोगों के आने जाने में सुविधा नहीं है, और जीटी रोड का जो चौड़ीकरण होना प्रस्तावित है वो भी इस रेलवे लाइन के कारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी रेल मंत्री जी से विनती है, निवेदन है कि ये हमारी जो गुहार है जो मैं बारंबार 2019 से लगा रहा हूं, इसको सुन लें और ये रेलवे लाइन हटाएं। कानपुर की जनता का उपकार करें, कानपुर की जनता को स्नेह दें, इतना ही निवेदन करना था। आपने अवसर दिया माननीय अध्यक्ष जी।
माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में रखने का मुझे अवसर प्रदान करा। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से बहकर मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी राजधानी उज्जैन पहुंचने वाली कान नदी के गंदे नाले का रूप धारण कर लिया है। इंदौर व उसके आसपास के तमाम उद्योगों के कारण दूषित पानी, सीवरेज का पानी उज्जैन में त्रिवेणी के तट पर आकर मोक्षदायिनी शिप्रा मैया में मिलता है। महोदय, जितना महत्व मां गंगा नदी का है उतना ही धार्मिक महत्व मां शिप्रा का भी है, लेकिन कान नदी के दूषित व प्रदूषित पानी के शिप्रा नदी में मिलने के कारण उज्जैन के रामघाट तक शिप्रा नदी प्रदूषित हो जाती है और बदबू आने लगती है। यहाँ तक कि आचमन, लोग जो धार्मिक तीर्थयात्री हैं वो पानी से आचमन भी नहीं कर सकते। कान नदी के जल का उपचार करने के लिए स्थायी और ठोस परियोजना बनाने की आवश्यकता है। महोदय, कल शनिवार को भी उज्जैन में एक स्नान पर्व है। उज्जैन चूंकि धार्मिक नगरी है और यहाँ पर पर्व और तीज और त्योहार पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और शिप्रा नदी में स्नान कर फल प्राप्ति की कामना करते हैं। आपसे निवेदन है महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि कान नदी के संरक्षण के लिए कोई स्थायी योजना बनाए जिससे मोक्षदायिनी शिप्रा मैया में मिलने वाली कान नदी के कारण जो प्रदूषण हो रहा है उसका निराकरण हो। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उपसभापति महोदय जी। परसों भी जब मैं मुंबई शहर के झोपड़पट्टी का विषय उठाया तो आप सभा पटल पर थे। आज मैं राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के जमीनों पर बसे हुए झोपड़पट्टियों का मुद्दा उठा रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा कि आज के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, दिल्ली के हजारों झोपड़पट्टियों को रेगुलाइज करके उनको जमीन भी उनके नाम पर करने का कायदा इसी पार्लियामेंट में गए सत्र में किया था। उपाध्यक्ष महोदय, 1985 में कुछ लोग कोर्ट में गए थे। रेलवे लाइन के सटे हुए सारे झोपड़पट्टी को तोड़कर रेलवे लाइन का काम करना चाहिए। रेलवे लाइन का काम पूरे देश भर में होना चाहिए, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता, सब होना चाहिए। लेकिन झोपड़पट्टी वासियों को स्थलांतरित करने का कायदा भी नियम में किया गया है। दिल्ली के लोगों ने 2015 तक के लोगों को सबको पर्याय जगह देने का नियम बनाया है। कोर्ट ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि दिल्ली के लिए हमने कायदा बनाया है, सभी लोगों को हम शिफ्ट करके बाद में रेलवे लाइन का काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, जो कायदा दिल्ली के लोगों को होगा लागू होगा वही कायदा सारे देश के लोगों को लागू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के लोग भी 10,000 लोगों का झोपड़ा रेलवे लाइन के बाजू का टूटना है, वो भी कोर्ट में गए हैं, उसका भी जजमेंट आने वाले दिनों में आ जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जो कायदा गुजरात और दिल्ली के लिए होगा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक देश एक कानून, तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जमीन पर बसे हुए झोपड़पट्टी वासियों को स्थलांतरित करके वहां का विकास किया जाए। इस प्रकार की मांग फिर एक बार मैं आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। स्लिप भेज दीजिए प्लीज। नामा नागेश्वर राव जी, आप बहुत वरिष्ठ हमारे सांसद हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अपने सहयोगियों को कहिए कि वो पीछे अपनी सीटों पर जाकर के बैठे, मैं आपको अवसर देता हूं। प्लीज प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। आप भी कह दीजिए तो चले जाएंगे सब लोग। जी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए प्लीज, डोंट बी इन द वेल। हाँ जी, श्री नामा नागेश्वर, ये पोस्टर नीचे कर दीजिए, आपकी बात पर्याप्त है, आपकी बात में पोस्टर से अधिक दम है, इसको रख दीजिए नीचे को प्लीज, डोंट शो इट। थैंक यू जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, जब ये सेशन चला था उस दिन से जो है तेलंगाना का फार्मर्स का बारे में, तेलंगाना का पैडी प्रोक्यूरमेंट का बारे में पिछले 5 दिन से जो है ना ये सभा का दृष्टि को हम लोग लेके आया। हम लोग का जब 28 को जो लीडर्स का मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग में भी हम लोग ये बोला था हमारा तेलंगाना में जो है ना पैडी प्रोक्यूरमेंट नहीं हो रहा है और तेलंगाना का पैडी के बारे में बात करने का मौका देने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया था। यही बात जो है ना हम बीएससी मीटिंग में भी बताया था। हमारा सबसे जो है ना ज्यादा मुद्दा इंपॉर्टेंट इश्यू है, तेलंगाना बनने के बाद हम लोग पूरा फार्मर्स को जो है ना फ्री 24 आवर्स का जो है ना करंट दिया है। 24 आवर्स घंटे का करंट देने का वजह से, पावर फ्री देने का वजह से
उसी तरह से हम लोग को रैत बंधु पर एकड़ को जो है ना 10,000 रुपीज देने की वजह से, और उसी तरह से जो है ना हम लोग को कालेश्वरम प्रोजेक्ट का वजह से पूरा तेलंगाना में काफी पानी आया है। ये पानी आया था, उसका वजह से पिछले 7 साल से जो है ना फार्मर को काफी डेवलप किया है। उसका वजह से जो है ना आज जो है ना हम लोग का पैडी इंडिया में नंबर 1 पोजीशन में हम लोग आ गया। अभी पंजाब से ज्यादा जो है ना, पंजाब से ज्यादा हम लोग का पैडी जो है ना पैदा कर रहा है हमारा फार्मर्स। और ये पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को जो है ना 2 क्रॉप डालता है, हम लोग को जो है ना रेनी सीजन का और यासंगी दोनों क्रॉप डालता है। ये दोनों क्रॉप का पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए ये गवर्नमेंट का पीछे जो है ना हम लोग काफी कुछ बात किया है। और तब भी जो है ना एक दफा बोलते हैं कुछ लेगा, एक दफा नहीं लेगा, एक दफा बोलते हैं सेकंड क्रॉप को नहीं लेगा, एक दफा बोलते हैं बॉइल्ड राइस बिल को नहीं लेगा। इसी तरह से एक दफा जो है ना रेलवे वैगन्स को नहीं देता है, एक दफा जो है ना एफसीआई को जो है ना कोटा नहीं दे रहा है। हमारा फार्मर्स, पूरा तेलंगाना का फार्मर जो है ना रोड में है, तेलंगाना फार्मर्स को दिक्कत कर रहा है। उसका बारे में हम लोग का जो है ना 6 मीटिंग हुआ था। ये 6 मीटिंग में जो है ना हमारा चीफ मिनिस्टर साहब भी आया था, हमारा जो है ना मंत्री लोग भी आया था, पूरा एमपी लोग भी जो है ना आके हम लोग जो है ना मीटिंग किया है। और हमारा पूरा जो है ना चीफ सेक्रेटरी भी आके 6 दफा मीटिंग किया। हम लोग का जो है ना ये गवर्नमेंट से ये डिमांड किया था, आप कितना पर ईयर जो है ना कितना आप पैडी प्रोक्यूर करेगा, उसका हमको एक कोटा दे दीजिए। वो कोटा देने से अकॉर्डिंगली जो है ना हम लोग अपना फार्मर को भी बता दिया है। अभी जो है ना जो पिछले पहले तो तेलंगाना बहुत पीछे था, स्वतंत्र बनने के बाद पूरा तेलंगाना का लोग जो है ना दुबई जाके उधर जाके इधर जाके हम लोग को जो है ना डेली लेबर का काम करता था। अभी हमारा जो है ना गांव डेवलप हो गया। త్వరగా డెవలప్ అయిన వాళ్ళంతా సరైన ప్లేస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్లే అయ్యారు. దానికి పెద్దవాళ్ళ ఆశీర్వాదం కూడా ఉంటే ఇక సక్సెస్ మందే. సువర్ణ భూమి, తరతరాలకు జరగని చిరునామా. మీకు తెలుసా నమస్తే, నేను స్పందన. వెల్కమ్ టు 99 టీవీ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఒమిక్రాన్ కేసులు రాష్ట్రంలో నమోదు కాలేదు. ప్రజలెవరూ అనవసరంగా భయపడొద్దన్న హరీష్ రావు. కాసేపట్లో పోలీస్ కస్టడీకి శిల్పా చౌదరి. చెంచల్గూడ జైలు నుంచి నార్సింగికి తరలింపు. సంగారెడ్డి జిల్లాలో విషాదం. కుటుంబ కలహాలతో ఫ్యామిలీ సూసైడ్. పీఆర్సీ పిలుపుపై సీఎం జగన్ కీలక ప్రకటన. 10 రోజుల్లో ప్రకటిస్తామని హామీ. ఢిల్లీలో పొల్యూషన్ పై సుప్రీం విచారణ. కఠినంగా నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశం. పార్లమెంట్లో ధాన్యం కొనుగోలు గురించి నిలదీశారు తెలంగాణ ఎంపీ కేశవరావు. రకాలతో సంబంధం లేకుండా వరి ధాన్యాన్ని కొనాలన్న ఆయన బాయిల్ రైస్ ఎంత కొంటారో స్పష్టంగా చెప్పాలని కోరారు. దీనికి సమాధానంగా ప్రతి ఏడాది వరి కొనుగోళ్లను పెంచుతున్నామని, ధాన్యం కొనుగోలుపై తెలంగాణ సర్కార్ రాజకీయం చేస్తుందని అన్నారు కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్. ప్రతి విషయంలోనూ తెలంగాణకు మద్దతిస్తున్నామన్న ఆయన ఖరీఫ్ సీజన్ తర్వాత యాసంగి గురించి ఆలోచిద్దామని తెలిపారు. What is the output, and they've come to pretty good number of accurate figures. Having said that, sir, I have again on record repeatedly been saying that first they have to supply the quantity that they have, for which if they have to procure, they should procure the paddy in their state. They have to still give us 29 lakh tons for the current procurement that's going on.
I've already given them, I think, 4 or 5 extensions, sir. It is a matter of record that again and again they come for extension. Our government has never refused it. So the fact is that we have extended all possible help and given a 3rd extension, 4th extension, and a 5th extension, as per my letter of 7th October. Despite that, they are not able to give us the stock. In the stock that they have to still give us, since they have raised parboiled rice, their original target for parboiled rice was 24.75 lakh metric tons. They came to me, asked for an increase. Sir, I increased from 24.75 as a one-time measure. I increased it to 44.75 lakh metric tons. Out of that also, to date, we have only received 27.78 lakh metric tons. 17 lakh metric tons is still pending for what has been agreed. So they are jumping into the future without supplying what has already been agreed. That's one point. Second, their own state government has confirmed to us in writing, based on the clause number 18 of the FCI MOU with you, that for the future, and that was the gentleman agreement between the state and us, we have discussed it with all the states. So you keep, I saw some placards about uniform policy. I would like to reassure this House, we have a uniform MSP policy, which is continuing for all parts of the country. According to that, para 18 clearly states, I can only buy what the states are willing to consume. And therefore, we had indicated well in advance that for future, problem is that they are mixing up the past and the future. For the future, their state, and I'm quoting a letter dated 4th October 2021 from Telangana government, confirming states shall not deliver parboiled rice to FCI in future. And based on that, we had said, okay, even though we have a lot of stock, what rice you have currently already there, we will procure all of it. So I don't know why again and again this issue is being raised. Please supply the 17 lakh tons. I have also told your Honorable Chief Minister that if some more... Thank you, please. I have also told your Honorable Chief Minister, if after that some small quantity is left, I will be accommodative to that also.